Assalamu alaikum student. My name is Kamran or today we have a discussion about very important topic of O-level mathematics, and in this topic we will start from some important identities which we frequently use in our mathematics course. Okay, there are three important identities that you have to remember always to solve important questions. Number one is a plus b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Second important identity is a minus b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. Third important identity is a square minus b square, a minus b, a plus b. तो स्टूडेंट ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है दैट वी हैव टू अप्लाई during at the time of solving questions. अब now you have to understand, आपको ये खुद जज करना पड़ेगा कि what identity is applicable in this question. Let's say, take the example here. Four b square minus 16 a square. For example, this is your question. अब now you have to understand कि कौन सी आइडेंटिटी यहां लग सकती है. सबसे पहले तो ये देखना है कि ये दो नंबर्स गिवन है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं या नहीं. अगर मैं देखता हूं भाई 2 इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं लिखूं 2b का स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर. बीच में यू हैव अ माइनस साइन. सिमिलरली आई कैन राइट हियर 4a का स्क्वायर, 4 4 जा 16a स्क्वायर. अब इनमें से तुम ये देखो कौन सी आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हियर. दिस वन नो. व्हाई? To apply these two identity, you required three terms. First of all, you required two terms in square form or in perfect square. दो terms तो आपको perfect square की फॉर्म में चाहिए और एक टर्म आपको चाहिए in the form of product. देखो नोट करो, ये a square and b square, there are two terms in both identities. इसमें भी a square b square दो terms हैं और दोनों का perfect square is possible. and जिनका जो perfect square possible है, what about the perfect square of this identity is a. Sorry, is this number is a, and what about the perfect square of this b square is b, and there is another term with minus sign is ab here. Similarly, you have another term ab with positive sign here. तो जब यहां पे ये टर्म्स मौजूद है, तीन टर्म्स, तीन पॉजिटिव टर्म्स हैं, 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव टर्म्स,
तो in this condition either we can apply a plus b का whole square और a minus b का whole square. These two identities are applicable in that at that time. But यहां पे अगर तुम देखो we have two terms a square and b square. तो look at this question. 4b square minus 16a square और इनका तुम परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो. तो this identity is applicable in this question. Now what about this one? A यानी this A is equal to 2B here. You got my point? And B is what बच्चों? 4A. You got my point? 4A हो जाता है. अब now apply this formula here. क्या है भाई? A square minus B square is identically equal to A minus B into A plus B. अब मैं ये formula apply कर रहा हूँ यार. So A minus यानी 2B का whole square minus 4A का whole square that is equals to A minus B. Similarly, A plus B. अब देखो, is there any possibility of any number which you can factor out from these two bracket terms? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तुम इसमें से कोई नंबर फैक्टर आउट कर पाओ? यस. व्हाट इज पॉसिबिलिटीज हियर? इसमें से 2 निकाल लेता हूं तो दोनों में इस टर्म में से 2 निकल सकता है. तो यू हैव 2 फैक्टर आउट होगा तो अंदर क्या बचेगा? b माइनस 2a. 2 2 जा 4. इसमें से फैक्टर आउट निकालता हूं करता हूं तो क्या बचेगा? अगेन 2b प्लस 2a. यू गॉट माई पॉइंट? नाउ अरेंज दीज टर्म्स. तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4. तो व्हाट यू हैव? b माइनस 2a इंटू b प्लस 2a. Now this is your final answer. You cannot solve more. आप इसको मजीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हो. Clear? Any question? No. Okay. Now move towards past paper question. हम past paper questions की तरफ मूव करते हैं. क्या करते हैं भाई? एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन उठाते हैं अब हम, ताकि आपकी अकॉर्डिंग टू पेपर प्रिपरेशन हो जाए. तो वी विल ट्राई टू सॉल्व. देयर आर ऑलमोस्ट 90 and 95 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन डिफरेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन इन डिफरेंट पास्ट पेपर्स. हम वो पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स स्कीम उसके आंसर मेंशन करें. एंड देन आई विल क्लियर यू कि कौन सी आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल इन दैट क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है. और इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 or 3 लेक्चर्स वी विल कवर ऑल द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट पेपर एज वेल एज मार्क्स स्कीम. हम वो सारा यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है. तो अब मैं पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन उठाता हूँ, पिक करता हूँ. ओके. क्वेश्चन आया है जून 2011.
पेपर 2। इसको मैं अभी लिखा कर रहा हूं यहां पे ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है पेपर जून 2011 पेपर 2। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्या दिया हुआ है? 9pq माइनस 12q²। 9p कह रहा है कि नाउ फैक्टराइज इसको 9pq 9pq माइनस 12q²। दिस इज क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर। क्या इस क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स हैं? नो। व्हाट डज इट मीन्स? 2 स्क्वायर फॉर्म में और एक प्रोडक्ट फॉर्म में क्या यहां मौजूद है? नहीं है। ओके, एक स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है और एक टर्म मौजूद है प्रोडक्ट फॉर्म में, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि दीज 2 आइडेंटिटीज यानी आइडेंटिटी नंबर 1 एंड आइडेंटिटी नंबर 2 वी कैन नॉट अप्लाई हियर, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के नाउ लुक एट आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 says us a square minus b square identically equal to a minus b into a plus b. अब according to this identity, what I need 2 perfect square term. तो look at here, इसको तो चलो मैं कुछ सोचता हूं कि to make it perfect square, why you have a q square here, but you can see this term. Is it possible कि तुम इसका कोई perfect square बना सको? No. तो इसका मतलब है in this question that is asked in 2011 paper 2 question number 15, we cannot apply these 3 identities. Clear? तो what we can do it, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ फैक्टराइज कर टर्म्स बाहर लेकर आ सकते हैं और उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखकर आंसर कंप्लीट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मार्क्स स्कीम। क्लियर? तो अब मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट इज पॉसिबल। पहली तो बात यह है कि आई कैन फैक्टर आउट क्यू फैक्टर आउट कर सकता हूं। क्यू इज ऑलरेडी इन बोथ टर्म नंबर 1 एंड टर्म नंबर 2 दोनों के साथ मौजूद है। सेकंड, मैं ऐसा नंबर फैक्टर आउट कर सकता हूं जो मेरे इस 9 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। तो व्हाट अबाउट दिस? तो 3 आई कैन फैक्टर आउट फ्रॉम दिस ब्रैकेट। सो इट मींस आई कैन फैक्टर आउट 3q फ्रॉम दिस टर्म। तो 9pq minus 12q square, it is equal to 3q. तो 3 3s are 9p minus 3 4s are 12q. So it is your answer. You cannot solve more.
क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन उठाते भाई. नाउ another question is 2xy June 2011 paper 1-2 question number 15. Question number 15. What is this? 2xy minus 3x, 2xy minus 3x minus 10y minus 10y plus 15. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कोई भी ऐसी टर्म मौजूद है जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है? यस. व्हाट इज योर आंसर? नो. देयर इज नो, नॉट इवन अ सिंगल टर्म हियर which you can make it perfect square, जिसका परफेक्ट स्क्वायर इज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी टर्म स्क्वायर में नहीं है. तो अब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि इसमें लाइव टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, अरेंज कर कर, ताकि उसमें से हम उसको फैक्टर आउट कर कर कोई सोल्यूशन निकाल सकें. अच्छा, अब देखो, इसमें से अगर मैं कोई नंबर फैक्टर आउट करना चाहूं इन दो टर्म्स में से, इज इट नॉट पॉसिबल? ओके, ओनली आई कैन फैक्टर आउट x. ठीक है, तो x फैक्टर आउट होने करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? यहां बचेगा 2y माइनस 3. क्लियर? 2y माइनस 3. इसमें से मैं फैक्टर आउट अगर करता हूं, क्या फैक्टर आउट करता हूं भाई? इसमें से अगर मैं 5 फैक्टर आउट करता हूं माइनस का, तो ये क्या बचेगा? ये 2y, और यहां क्या बचेगा? माइनस का 3. जब मैं माइनस बाहर निकाल लूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी. फिर इन दोनों टर्म्स को मैं फैक्टर आउट कर सकता हूं. तो अब मैं इसको कुछ अरेंज नहीं कर रहा, इसमें से सिर्फ मैं फैक्टर आउट कर रहा हूं. फर्स्ट टर्म में से क्या फैक्टर आउट करना है बच्चों? फर्स्ट टर्म में से मैंने फैक्टर आउट करना है क्या? x. ओके, तो x फैक्टर आउट किया, you will have 2y minus 3. इसमें से क्या फैक्टर आउट करूंगा? इसमें से मैं फैक्टर आउट करूंगा आपका माइनस का 2, तो you will have 5 माइनस का 5, तो 5 2 जा 10, माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में. 5 3 जा 15. यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर? अब क्या बाहर आ सकता है? अब बाहर आ सकता है ये दो टर्म्स आर सिमिलर, सो 2y माइनस 3 एंड 2y माइनस 3 यू कैन फैक्टर आउट. तो अब क्या बचेगा? 2y माइनस 3, तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा? 5. So it is your simplified required answer. You cannot simplified more. आप इसको मजीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हो. क्लियर? अब नाउ लुक एट अदर क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर June 2012.
12x² माइनस 15 x की पावर 3 के ओके। another one question is, चले ये करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जून 2012 पेपर 1-1 क्वेश्चन 4। जून 2012 पेपर 1-1 क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4? 25 x² माइनस 4y²। 25 yes बच्चा, how many terms are here? 2 terms. Clear? So it means that you cannot apply both above identities. Okay, we cannot apply it here. Okay, is there any factor is perfect square? Yes, there are 2 perfect square here. Clear? So it means that there is the possibility to apply this identity here. क्या करूंगा भाई, जल्दी बताओ, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 5। क्लियर? और 5x। व्हाट अबाउट दिस वन? 2y का स्क्वायर। सो a इज हियर 5x, b इज हियर 2y। क्लियर? सो नाउ आई कैन अप्लाई दिस वन। यस, अप्लाई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं? ये वाली। क्लियर? तो अब मैं लिख रहा हूं, कैसे लिखते हैं? a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा भाई? मेरा 5x का स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू 5x माइनस 2y इंटू 5x प्लस 2y। So it is your required answer. Required answer. Yes. Okay. Okay. November 2012 paper 1-2 question number 15. November 2012 November 2012 paper 1-2 question 15. Yeah. भाई कह रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली
xy plus 2ay plus 3ay plus 6a square। कह रहा है भाई xy plus 2ay plus 3ax plus 3ax plus 6y। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ, डायरेक्टली आई कैन अप्लाई एनी वन ऑफ these identity? No. Why? Because you have 4 term there. यहां पे कौन सी टर्म है? 4 टर्म है। सेकंड, सिर्फ एक टर्म के जो स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, कोई भी फॉर्म स्क्वायर में मौजूद नहीं है। ऑल फॉर्म टर्म्स आर इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं किसी तरीके से, और अरेंज कर कर इसमें से कोई फैक्टर आउट कर कर फिर हम क्या करते हैं, कुछ ब्रैकेट सिमिलर आ जाएंगी, सिमिलर ब्रैकेट्स टर्म होंगी, उनको फैक्टर आउट कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो अब मैं ये करता हूं, अगर देखो इन दोनों में से मैं क्या फैक्टर आउट कर सकता हूं? यस, x नो। क्या कर सकता हूं? 2 नो। क्या कर सकता हूं? y ओनली। क्या कर सकता हूं? y। इसमें से क्या फैक्टर आउट कर सकता हूं? इसमें से फैक्टर आउट कर सकता हूं 3 ओनली। क्लियर? तो अंदर क्या बचेगा? ax प्लस 2, 3 2 6, 2y स्क्वायर। तो क्या ये मेरी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है इसको सॉल्व करने की? मुझे नजर नहीं आ रहा कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी बन रही हो। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको अरेंज करता हूं, इसको इसके साथ ले आता हूं, और y इसको इसके साथ ले आता हूं, x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ ले आता हूं, और y वाली टर्म्स को y वाली टर्म्स के साथ ले आता हूं। ठीक है, इस तरह अरेंज कर लेते हैं। इसमें x सिमिलर है तो x साथ ले आता हूं, तो xy प्लस 3ax प्लस 2ay प्लस 3y स्क्वायर। अब क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें से x बाहर आ जाएगा, तो x बाहर आया तो y प्लस 3a। क्लियर? इसमें से क्या फैक्टर आउट हो सकता है भाई? इसमें तो एक तो 2 फैक्टर आउट हो सकता है और दूसरा y। तो जब मैं 2 फैक्टर आउट करता हूं और y, तो 2y। क्लियर? तो अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है a प्लस 3y। ऐसा ही है, a प्लस 3y। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो। तो यू कैन नॉट सॉल्व फर्दर दिस क्वेश्चन। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें अगर मैं यहां देखता हूं कि भाई इसमें y प्लस 3 है, ओके यस, और ये क्या है, a प्लस 3y प्लस a, नहीं निकलेगा। रीजन ये है कि यहाँ a के साथ 3 है और यहाँ a के साथ 1 है कोफिशिएंट। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 3। So that's why these two brackets are not similar with each other. ठीक है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सिमिलर
नहीं है, so that's why we cannot factor out. Clear? You got my point? So it is your final answer. Clear? It is your final answer. अच्छा, अब अगर हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और कर क्या करते हैं भाई, इसमें से निकालते हैं नंबर, यहां लेता हूं, इन दोनों में क्या फैक्टर आउट हो रहा है, y, y निकाला, अंदर क्या बचा, x प्लस 2a। क्लियर? इसमें से क्या फैक्टर आउट हुआ, 3 ओनली प्लस 3 फैक्टर आउट हुआ, तो ये क्या बच रहा है भाई, ax, क्लियर, प्लस 3 2 6 y स्क्वायर। देख लो, कैन यू सॉल्व, नो, सो अगेन यू स्टक हियर। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से करो, इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, तो यू विल कैन नॉट रिजॉल्व मोर, आप इसको इन डिटेल मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो नाउ थैंक यू गाइस, इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट आवर रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर from this topic of algebra in my coming video. So please watch and subscribe my channel. Thank you so much.